آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ہمارا آئین ہماری جمہوریت کی بنیاد، صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کا یوم دستور تقریب سے خطاب۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا امکان، 36 گھنٹے طویل مذاکرات۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے مستعفی، کون ہوگا اگلا چیف منسٹر؟ تجسس برقرار۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے باوجود مساجد کا سروے، جمعیت علماء کی سپریم کورٹ سے مداخلت کی اپیل۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کا دہلی دورہ، مرکزی وزراء سے ملاقات، دفاعی اراضی حوالے کرنے کی خواہش۔ اور حیدرآباد کے پرانے شہر میں بہت جلد دوڑے گی میٹرو ریل، جنوری 2025 سے ہوگا کاموں کا آغاز۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیل اور لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہونے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لبنانی ذرائع نے بتایا کہ امریکہ اور فرانسیسی صدر 36 گھنٹوں میں جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی سے متعلق مذاکرات درست سمت میں جاری ہیں اور ہم معاہدے کے قریب ہیں۔ فرانسیسی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور امید ہے کہ جلد نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہرے کے دوران سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجر اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، جس سے 4 رینجرز اہلکار جاں بحق جبکہ 5 رینجرز اور 2 پولیس کے جوان شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا پر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے چلنے والی خبروں کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں اب تک رینجرز کے 4 جوان شہید اور پولیس کے 2 جوان جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 100 سے زائد پولیس ملازمین زخمی ہوئے، جن میں متعدد زخمی بتائے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے شاہراہوں اور ہائی ویز کی بندش کے باعث پیٹرول کی سپلائی متاثر ہونے سے پہلے پمپس بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ڈان نیوز کے مطابق پیٹرول پمپ مالکان نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ لاہور ریجن میں صرف 1 دن کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے۔ سپلائی بحال نہ ہوئی تو پیٹرول پمپس بند ہو جائیں گے۔ پیٹرول پمپ مالکین ایسوسی ایشن کے سیکریٹری اطلاعات ملک جہان زیب نے ڈان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ریجن میں پیٹرول کی یومیہ ضرورت 1,30,00,000 لیٹرز ہے۔ گزشتہ 4 روز سے سپلائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بیشتر پیٹرول پمپس بند ہونے کے در پر ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آئینی نظریات کو نافذ کریں اور اس کے بنیادی فرائض پر عمل کریں۔ سال 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے قومی ہدف کو حاصل کریں۔ آئین کو اپنائے جانے کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منگل کو ایوان دستور کے سینٹرل ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے کہا، 75 سال پہلے اسی دن اس مرکزی ہال میں ایوان دستور ساز اسمبلی نے ایک نئے آزاد ملک کے لیے آئین کا مسودہ تیار کرنے کا عظیم کام مکمل کر لیا تھا۔ सांसदगण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। शिव सेना के कायद एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जबकि हुक्मरान महायुति इत्तेहाद ने असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत के बाद इख्तिदार बरकरार रखा है। शिंदे ने मंगल की सुबह गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की और अपना मकतूब इस्तीफा पेश किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। गवर्नर ने शिंदे से कहा कि वो निगरान वजीर आला के तौर पर काम करें जब तक कि नए चीफ मिनिस्टर की हलफबर्दारी नहीं हो जाती। संभल वाक़या रोनुमा होने के बाद जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से इस अहम मुकदमे पर जल्द अज जल्द समाअत की जाने की गुजारिश की है। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने संभल जैसे अफसोसनाक वाक़े पर कहा कि हुकूमत गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की यकीनी पासदारी न होने की वजह से मुल्क का अमन मुतासिर हो रहा है।
जमीयत उलमा के जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की हकीकी पासदारी न होने की वजह से संभल जैसे वाक़यात हिंदुस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून 1991 होते हुए भी मुस्लिम इबादतगाहों के सर्वे करने का हुक्म ज़ेरी अदालतें जारी कर रही हैं, जो इस कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू से मुलाकात करते हुए दिफा की अराजी देने और नए एयरपोर्ट्स की मंजूरी की दरख्वास्त की। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा महकमे बल्दी नज़्म व नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर के साथ मिलकर दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद शहर में वाक़ वजारत दिफा की 200 एकड़ अराजी रियासती हुकूमत के हवाले करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को नई दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस लीडर को हल्के लोकसभा वायनाड के ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जो चीफ मिनिस्टर के साथ थे, उन्होंने भी प्रियंका गांधी को मुबारकबाद दी। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने सदर कुल हिंद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और मंगल को कौमी दारुल हुकूमत के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के दस्तूर बचाओ अभियान में शिरकत की। ये तकरीब मेरी जान मेरा संविधान के नारे के साथ यौम दस्तूर के मौके पर मुनक़िद की गई। नारायणपेट के मुगनूर के जिले परिषद हाई स्कूल में मंगल को समेत ग़िज़ा से कम 30 तलबा मुतासिर हो गए। हालिया दिनों में इस स्कूल में समेत ग़िज़ा और खाने की अशिया में कीड़े पाए जाने की तलात के दरमियान मंगल को यह वाक़या सामने आया है। समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने वाले तलबा को फौरी तौर पर दवाखानों से रुजू किया गया। इनमें मक्तल का सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल है। चितलात के मुताबिक मिड डे मील के इस्तेमाल के बाद इन तलबा ने दर्द शकम और बेचैनी की शिकायत की। चूंकि वहां कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, इस वजह से तलबा को कारों और दूसरी गाड़ियों के जरिए दवाखानों को मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी के सबब तालिबात की मौत के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। आसिफाबाद जिले के आश्रम स्कूल वांकड़ी में नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से दीगर तालिबात के साथ शैलजा भी अलील हो गई थी, जिसकी गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी नाश इसके आबाई गांव लाई गई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए शैलजा के ख़ानदान के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। महकमे ट्रांसपोर्ट को फैंसी नंबर के अलॉटमेंट के जरिए एक दिन में 52,52,000 करोड़ की आमदनी हुई। हैदराबाद के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फैंसी नंबरात के अलॉटमेंट के जरिए ये भारी रकम महकमे को हासिल हुई। सबसे ज्यादा बोली TG09D 0001 और उसके बाद की बोली TG09D 0009 पर लगाई गई। ये नंबर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हासिल किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल शुरू होकर 28 नवंबर को 7 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। इस मौके पर रियासती हुकूमत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शहर के दीगर इलाकों में वुसअत देने के लिए दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर दिया है। इसके पेश नज़र हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर MVS रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले मरहले अंजाम दिए जाने वाले दूसरे मरहले की तफसीलात पेश की। हैदराबाद में पुलिस ने मूसा नदी में सनती फुजला छोड़ने की कोशिश पर लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और टैंकर को जब्त कर लिया गया, जिसके जरिए सनती फुजला मूसा नदी में डालने की कोशिश की जा रही थी। लंगरोज इलाके में मकामी अफराद ने एक लारी ड्राइवर को देखा जो मुबैना तौर पर टैंकर से केमिकल्स का फुजले को मूसा नदी में बहाने की कोशिश कर रहा था। मुकामी अफराद के मुताबिक बड़ा टैंकर पी की रात राम मंदिर लंगर हाउस के करीब
मूसा नदी के किनारे ठहराया गया और रात के आखिरी पहर में हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड के साथ बड़े टैंकर को देखकर मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़ लिया। हाँ निकाल लिया हाँ निकाल लिया अरे तीसरा टेंशन हो रहा है। क्या कर रहा है? नहीं ये कहाँ से लेके क्या बोलने का क्या बोला तो क्या बोलना है? लंगा तो सिया के निकाल रहे। हाँ गाली सुनने के रहता। शहर हैदराबाद के इलाके जीडी मेटला में इंडस्ट्रियल एस्टेट में मुत्तसिल सुभाष नगर डिवीजन के वेंकटाद्रि नगर में कल शाम अचानक मेन होल से सुर्ख रंग का पानी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये पानी सड़क पर बहने लगा, जिसको देखकर राहगीर भी हैरतज़दा रह गए। कई मुकामी अफराद और राहगीरों ने इसकी वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया। मुकामी अफराद ने बताया कि सुर्ख रंग के पानी से इलाके में बड़े पैमाने पर बदबू फैल गई, जिससे सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की गई है। రంగురంగులో నీళ్లు పోతుంటే ఇగో చూడండి ఇంత పెద్ద ఇల్లులు ఉన్నది, మొత్తం పబ్లిక్ ఉన్నారు ఇంత వెంకటాద్రి నగర్ కాలనీలో ఇంతమంది ప్రజలు తిరిగే ప్లేస్లలో ఈ ఎర్రగా వాటర్ పోతుంటే ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ? వెంకటాద్రి నగర్ పబ్లిక్ దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన విషయం. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి బీమారి వస్తే ఎవరు బాధ్యత? చూడండి ఇట్లా మొత్తం ఎర్రగా ఎంత దూరం పోతుందో చూడండి. ఇట్లా పోతుంటే పిల్లలకు చిన్న రోగాలు రావా? చూడండి ఇంటి ముందు ఎట్లా తిరుగుతారు, ఇవన్నీ తొక్కుంటే ఇంట్లోకి ఎట్లా వెళ్తారు? కొద్దిగా ఆలోచించండి. వెంకటాద్రి కాలనీ ప్రజలు కొద్దిగా దీని గురించి ఫాలోఅప్ చేయండి. तेलंगाना में रोज बरोज दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि शुमाल मशरक़ी सिंध से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दी का ज्यादा असर है। महकमे मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक रात के वक्त दर्ज हरारत 13 से 14 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि आने वाले दिनों में दिन के वक्त अकलतरीन दर्ज हरारत 20 से 23 डिग्री रहेगा और सर्द हवाओं की शिद्दत का इम्कान है। मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के सबब शहर हैदराबाद में अवाम वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। दर्ज हरारत में कमी के साथ साथ वायरल अमराज के मुतासिरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। रात और सुबह के औकात में शदीद सर्दी की वजह से लोग खांसी और नज़ला जुकाम के साथ साथ वायरल बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। फीवर हॉस्पिटल में बुखार के मरीजों का हुजूम देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज हॉस्पिटल से 568 मरीज आउट पेशेंट के तौर पर रुजू हुए और इनमें से ज्यादातर वायरल बुखार का शिकार थे। हमारा आइन हमारी जमहूरियत की बुनियाद। सदर जमहूरी आइन द्रौपदी मुर्मू का यौम दस्तूर तकरीब से खिताब। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का इम्कान, 36 घंटे तवील मुज़ाकिरात। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे मुस्तफी, कौन होगा अगला चीफ मिनिस्टर? तजस्सुस बरकरार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद मसाजिद का सर्वे, जमीयत उलमा की सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा, मरकजी वज़रा से मुलाकात, दिफाई अराजी हवाले करने की ख्वाहिश। और हैदराबाद के पुराने शहर में बहुत जल्द दौड़ेगी मेट्रो रेल, जनवरी 2025 से होगा कामों का आगाज। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।